Welcome to PanLab Podcast. I'm Akanksha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. Now, in this episode, हम explore करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे abstract ideas and concept जो बहुत fundamental रहे हैं to our beings. ये ideas हमारी life में बहुत prominent role play करते हैं the way we act in the world and the way we are presenting ourselves in the world. Especially जब आप अपनी life में एक ऐसे point पे आ रहे हैं जहाँ पे things are not working out for you or you are facing the negative aspect of living, right? You should live up to your potential. What does that exactly means? It's something like that कि there is something in you that you could be, which you are not right now, but you could be that if you interact properly with the world or if you interact with that potential. So it's something like that. It's like you're making a case that there's something about you which is much more than you already know of, that you can actually explore, that you can actually bring into the reality only if you participated in the process properly. So it's something like that. The idea of potential बहुत nuanced idea है and ये इस तरह का idea है कि हम इसे in terms of words express कर पाए या नहीं कर पाए. Everybody understands it, right? Everybody understands what it means when somebody tells you should live up to your potential. Or when you say that I have potential to be or I am able to do something better than I'm doing it right now. And इसी idea of potential की बात करते हैं लोग कि आपका अपना जो consciousness है वो इस potential को reality में convert करता है. It is the tool जिसके ज़रिए आप transcend करते हैं खुद को, and transcending yourself beyond what you already know of is again very fundamental idea. It's like something आप अपने आप को beyond the limitation of your painful awareness and beyond the limitation of what are your constraints, उसके beyond लेके जाना, उसको surpass करते हुए अपने आप को इस तरह से transform करना कि जो आपकी एक painful limitation है, जो आपके painful constraints हैं, वो आपकी life की progress को या वो आपकी as a human being की progress को रोक नहीं पाएंगे, उस पर एक काइंड ऑफ हडल नहीं ला पाएंगे. सो यू ट्रांसेंड योर सेल्फ थ्रू योर कॉन्शियसनेस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, आपको एक्साइट करती है. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपने आप को ट्रांसेंड करना बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, बियॉन्ड योर नोन कैपेसिटीज़, यानी अपनी उस पोटेंशियल को ट्रिगर करना जो आपको एक आपकी अपर लिमिट तक लेकर जाता है. यू एक्सपीरियंस दैट इन योर बॉडी. आप उसे अपनी नर्वस सिस्टम में एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपनी बॉडी में उसे एक्सपीरियंस करते हैं जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या आपको कुछ ऐसा मिल जाता है विच रियली कैप्टिवेट योर इंटरेस्ट, विच जस्ट क्रैपल योर इंटरेस्ट. इट्स लाइक how do you proceed towards it? You proceed with a lot of enthusiasm and excitement because it's a dopaminergic, right? Dopamine, neurochemical, जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है when you get motivated and when you get excited about something, and dopaminergic roots जाती हैं way to your hypothalamus. Hypothalamus आपके ब्रेन का सबसे ancient, सबसे archaic part है. It's that part of your brain जो सबसे पहले डेवलप होता है. So just imagine कि कितना ज़्यादा built in है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी में, कि the moment we get something जो हमें excite करे, जो हमें enthusiastic feel करे, our biology starts supporting and aligning itself to it, and that's what you feel in your nervous system. आप excited feel करते हैं, आप बहुत ज़्यादा engaged feel करते हैं उस activity में, and you start moving towards it because again dopamine is a movement molecule. It makes you move towards something. You approach it, you pursue it. So this is what the whole idea of the consciousness is, कि जब आप अपनी खुद की, आपकी खुद की subjective experience की reality and उस experience में छुपा होता है कि किस तरह से आप अपनी life को इस point से दूसरे point में transform कर सकते हैं by converting that chaos into an order, because chaos aligns with the idea of nature. एक formless potential को हम chaos कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसका form नहीं है, shape नहीं है, जो कि all over the place है and maybe आपके लिए unknown है, you're not even certain about it, लेकिन उसमें potential है to be great, उसमें potential है to be what you want it to be. Because first जब हम encounter करते हैं अपनी खुद की reality से, and more importantly जब हम encounter करते हैं खुद के potential से, तो हम उसे encounter करते हैं in a dream like state, in a fantasy like state. It's like what you want to be. You imagine that. You imagine yourself to be at a place that you want to be in future. You imagine, you fantasize about the success that you are craving for. You get into that dream-like state, and from that dream-like state, आपका वो चीज़ conscious awareness में आती. It's like you're bringing something in your
कॉन्शियसनेस सो दैट आप उसको अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर सके एंड उस ड्रीम लाइक स्टेट से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को टूवर्ड समथिंग जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल है, बिकॉज योर ड्रीम्स आर ऑल ओवर द प्लेस, राइट। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको रियलिस्टिक लगेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको रियलिस्टिक नहीं लगेंगी, लेकिन आपको ये पता है कि वो चीज़ें हो सकती हैं या आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हो। सो आपके लिए वो एक कियोस की तरह होगा एंड इस कियोस में छुपा हुआ होता है पोटेंशियल, द टेंडेंसी कि वो क्या हो सकता है, वॉट इट could be, and then it becomes कि आप उसे अपनी conscious awareness में लेके आए so that you put a conscious efforts toward it। आप उस पे conscious effort डालते हैं, effort in terms of your thinking, effort in terms of planning about it, strategizing about it, efforts in terms of collecting resources to make that thing happen, and with this conscious effort or with the tool of your own conscious, your own experience of it, you convert that chaos or you convert that formless potential, chaotic potential into order, into something which is more real, into something which you feel that you transformed it into the reality. You transform that dream, that wish into a reality. And you see that everywhere. You see it in your work, you see it in your job, you see it when you're trying to sell something. जब आप किसी को कुछ बेचते हैं तो असेंशियली आप उसको सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, आप उसको उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है, उस प्रोडक्ट में जो पोटेंशियल है, यू आर ट्राइंग टू सेल दैट एंड पीपल बाय दैट पोटेंशियल। यू आर एबल टू डू दैट, आप ये कर सकते हैं। एंड इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन एंड उनका कॉन्शियसनेस सेंटर पे लाई करता है किसी भी कियोस में से ऑर्डर एक्सट्रैक्ट करने में। हैबिटेबल ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आप रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ होम out of nothing. That's what human potential is. That's what human consciousness is. And अगर आप interact करें उस process से for what you could be, that means if you decide कि आप अपनी psyche को सही तरीके से put करेंगे, you decide कि you'll get your act together and you move towards it and you make the right sacrifices, because things require sacrifice for it to happen. And if you do that, if you just take a bet, just take a step towards it, तब आपको पता चलेगा शायद कि आपकी पोटेंशियल किस लिमिट को क्रॉस करके कहाँ जाके ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप उस कियोटिक वर्ल्ड के साथ में एनकाउंटर नहीं करेंगे, उस कियोटिक फियर के साथ में ग्रैपल नहीं करेंगे, उस रियलिटी को काइंड ऑफ फेस नहीं करेंगे, तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि अपर लिमिट क्या थी आपके अपने पोटेंशियल की, व्हाट यू कुड बी। बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलोगे और जो आपको ये बोलेंगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग रियली रियली वेल एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ भी इम्प्रूव या बेटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू मीट समबडी लाइक दिस, देन मोस्ट प्रोबेबली वो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी से गुजर रहे हैं। बिकॉज यू नो दैट आप मोस्ट ऑफ द टाइम, इन जनरली स्पीकिंग, आप जब लोगों से मिलते हो तो लोग हमेशा यही बात करते हैं दैट देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम और बेटर कर सकते हैं, हम और बेहतर हो सकते हैं, देयर इज़ मच मोर दैट आई वॉन्ट टू डू। और सिर्फ मैं यहाँ तक नहीं रुकना चाहता, मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं और भी प्रोग्रेस को देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अचीव मोर, आई वॉन्ट टू डू बेटर। एंड वो बेटर क्या है आपके लिए, वो आप ही को डिफाइन करना होता है। इट्स नॉट समथिंग जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से लेना है। आपका बेटर इज़ वॉट आपकी लाइफ जो परमिट करती है या जो आपके लाइफ में मायने रखता है, वैल्यू रखता है। लेकिन उस कियोटिक पोटेंशियल से आपको खुद को एनकाउंटर करना होगा, आपको खुद को वो बेट लेनी होगी टू ट्रांसेंड योर सेल्फ बियॉन्ड इट। एंड फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो पोटेंशियल आपके अंदर इनहेरिट है, क्योंकि हम इसे फेस किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से नहीं कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी शैलो आइडिया टू से कि हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज चाहिए, हमें बाहर की कुछ कंफर्ट्स चाहिए अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए। नहीं, इट इज़ इनसाइड यू और आपको बाहर की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू रियली आर डिटरमिन्ड टू मेक इट हैपन, you will make it happen, because ये पोटेंशियल आपके अंदर इनहेरेंट है। ये स्ट्रक्चर हम इनहेरेंट करते हैं हमारे एंसेस्टर्स से। सो दैट्स वाई जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स के साथ आते हैं, जिसे हमें फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे हमें फिर से नए तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी खुद की बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, इंक्लिनेशंस होते हैं, बायसेस होते हैं, विच आर लाइक वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। एंड उस इनबिल्ट स्ट्रक्चर को हम इंटरैक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, विच इज़ मोर अलाइन टू फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ इट। वाई? बिकॉज फेमिनिन एस्पेक्ट गिव राइज, नई चीज़ें निकलती है, क्रिएट होती है फ्रॉम द एलिमेंट विच इज़ फेमिनिन, मदर नेचर, राइट? नेचर गिव राइज टू न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट हॉबिट डिड, राइट? हॉबिट ने भी ड्रैगन को फेस किया था
एंड व्हेन ही फेस द ड्रैगन, उस पूरी जर्नी में ही रियलाइज कि ही हैज़ मच मोर देन ही थॉट हिमसेल्फ टू बी, राइट। ही रियलाइज कि वो ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो इन द स्टार्ट ऑफ द जर्नी उसे नहीं लगा था कि वो कर पाएगा या वो उसके बस की है। बट ही डू कम टू दैट रियलाइजेशन इन दैट जर्नी ऑफ फेसिंग दैट मॉन्स्टर, फेसिंग दैट ड्रैगन। वो ड्रैगन जिसके पास कुछ वैल्यूबल छुपा है, जो आपको उससे लड़के, उसे फेस करके, उसके साथ रेसल करके एक्सट्रैक्ट करना होगा। एंड ये आप करते हो आपका जो इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, यानी जो आपकी रियलिटी है, जो आपको गिवन है, इट्स लाइक यू आर थ्रोन इनटू द रैंडमनेस ऑफ द एक्सपीरियंस। एंड उस रैंडमनेस ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में रैंडम होंगी, यू हैवंट चोज कि आप किस फैमिली में बॉर्न हैं, यू हैवंट चोज किस स्टेट पे या किस शहर में आप बॉर्न होंगे, किस कंट्री में आप बॉर्न होंगे, यू हैवंट चोजन कि आपका सोशल स्टेटस क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, यू आर जस्ट बॉर्न इनटू दैट। उस बिल्ट इन स्ट्रक्चर, उस रैंडम स्ट्रक्चर जो गिवन है, जिसमें आप थ्रो कर दिए गए हो, आप उसे लेकर एंड वो जो आउटसाइड अननोन पोटेंशियल है, कियोटिक पोटेंशियल है आपके अराउंड, क्योंकि अभी जब आप देखेंगे उसकी तरफ तो आपको वो लगेगा कि इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ से मैं क्या सीखूंगा, इट्स ऑल ओवर द पेज, इट्स नथिंग, इट्स लाइक अ शैम्बल। लेकिन उसी स्ट्रक्चर को लेके आप उस मदर नेचर के साथ, वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, कियोटिक पॉसिबिलिटी के साथ, जिनमें जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इन्यूमरेबल है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उसके साथ में जाके इफ़ यू इंटरैक्ट प्रॉपर्ली, दैट इज़ जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने लगे, जब आप उसको सही तरीके से अप्रोच करने लगे, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, एंड यू पार्टिसिपेट दैट विथ योर कॉन्शियसनेस, यू डू दैट विथ योर willingness by your own subjective experiences and how you're seeing it, तो वो आपको, आपकी साइकी को, आपके परसेप्शंस को, आपके जीने के तरीके को और आपकी लाइफ को शेप करने लगेगा, उसे ट्रांसफॉर्म करने लगेगा। एंड हो सकता है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, इंगेज हो जाए, कि वो आपको कंप्लीटली ट्रांसेंड कर दे आपकी अपनी पेनफुल रियलिटी से। दैट मीन्स इट टेक्स यू टू अ प्लेस जहाँ पे आप मटीरियलिस्टिक, हिडनिस्टिक एंड जो भी ऑब्जेक्टिव सेंशुअल रियलिटी है उससे सरपास कर पाए, उससे ऊपर उठ पाए, एंड यू कैन फील दैट मे बी आपको लाइफ अब समझ में आने लगी, मे बी आपको जो एक्सपीरियंसेस एंड जो लाइफ बियॉन्ड हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगा। मे बी यू गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ far better than what you're able to experience through your own senses. So these were certain ideas, and just a glimpse of ideas is something that I want people to think about. Something जो मैं चाहती हूँ कि लोग इन आइडियाज़ को लेके, इन एब्स्ट्रैक्शंस को लेके क्यूरियस हो जाए। कॉन्शियसनेस क्या है, chaos एंड ऑर्डर क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, आपकी खुद की पोटेंशियल की लिमिट्स क्या है। एक्सप्लोर दैट, पुट योरसेल्फ राइटली इन दोज शूज and undertake that journey, then you'll see. Thank you so much for listening to Panlab podcast. अगर आपको ये podcast अच्छा लग रहा है then please do subscribe and like the channel and share if you can.